Earlier, that Indians outside have been able to be really successful and bring this up, but Indians here have really not, made one of the Zuckerbergs or, one of the Vinod Nams. So I think, a fundamental message that we need to take as we go and implement and get digital India moving is how do we create the right ecosystem where we are able to first maybe retain the IITians who are going away, and two, give them the right support so that they are nurtured into delivering something within the country for the country. Yes. I think now that involves many things. First, the salary levels, the working atmosphere, the support, all of them. The whole ecosystem has to have a significant change. So that ecosystem is Digital India, isn't it? I'm sure that's the opportunity, and this is an age for apps, as I said earlier. Yes. And this is where a lot of people are living, even their normal jobs. Some of them are even coming back, brain gain, Yes. as you can say here, to see how India-specific apps can be made. And I think we might have some very interesting success stories, successful apps that really would be a trendsetter for many others to be entrepreneurs and within the country. Okay. Would you say that also, I mean, we had our IITs producing high quality manpower who left the country. I mean, there were only 4 IITs in those days. Now they've expanded. Even in other fields of science, education and technology education, we have many more areas of we have the field is wider. So in that sense, we are producing more people, but how do we maintain the quality of that high quality education? Do you think that that's an issue that we should be concerned about? I think that the quality of education with the expansion of the IITs or many other institutions have really not happened in the government sector. I think one IIT incubated another IIT or the faculty from few of them would incubate one. So I think we haven't really suffered on that. I think the quality of the mushrooming private engineering colleges and institutions, those things have to be really looked into, because we are producing a lot of engineers and we are also producing a lot of graduates who are very low in terms of employability. So while the money is wasted in Yes. paying those institutions, but we are not getting people who can be far much more higher in terms of productivity Yes. and employability, either here or even outside, based on the education that they are getting. So I think this is something that we really need to focus on. और ख़ासकर अगर हम देखें तो अभी प्रधानमंत्री गूगल के मुख्यालय में हैं, वहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं, गूगल के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। और इससे पहले जब वो फेसबुक के मुख्यालय में गए थे, वहाँ पर उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। तो प्रधानमंत्री का जो ये कहना था कि हाईवेज वर्सेस Highways, yes. तो ये आप आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है? देखिए, हाईवेज और हाईवेज दोनों एक साथ पैरेलली चलेगा मेरे ख्याल से। हाईवेज से ज़्यादा स्पीड में बढ़ते जाएगा, और जितना हाईवेज बढ़ेगा उतना आपका डिजिटल छाप भी देश भर में बढ़ते जाएगा। अब हाईवेज अगर आप देखें, लगभग 2 डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस, और फिर इनका अंदर सब सिस्टम्स और एप्लीकेशंस आते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ई कॉमर्स जो बड़ा लेट स्टार्टर है इंडिया में, B2C ई कॉमर्स अब धीरे धीरे पकड़ने लगे। B2B ई कॉमर्स का और बहुत कुछ हो सकता है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ साथ भी जब ये आएगा तो इसके साथ और बहुत सारे। बिल्कुल। और इस वक्त हम ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गूगल के मुख्यालय से, सैन जोस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, और वहां पर गूगल के जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ हैं। सुंदर पिचाई भी वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री को अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि गूगल अर्थ किस तरह से काम करता है और क्या उन लोगों ने अपडेट किया है, वो प्रधानमंत्री को दिखा रहे थे। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं, इस वक्त गूगल की कोई और फैसिलिटी इस वक्त प्रधानमंत्री को
दिखाई जा रही है। सुविमल, अगर हम गूगल की बात करें तो एक चीज़ तो ठीक है, जिसको पूरा देश और दुनिया जानती है कि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर डालिए, आपको वो जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तब हम गूगल का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मेरे ख्याल से पहली बात तो गवर्नेंस, सब अधिकारियों के पास अब इंफॉर्मेशन नहीं होता, गूगल के थ्रू इन्हें सब कुछ मिल जाता है। कभी कंपैरिजन भी कुछ करना है, क्रेडिबिलिटी होगी जो अधिकारी अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर गूगल से लेने लगे तो क्या? आज के डेट में तो वो ले रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सबके पास सब डाटाबेस तो नहीं है, और रूटीन प्रोसेस में जब कम्युनिकेट करते कोई भी रिप्लाई कभी टाइम पे तो नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से सारे लोग आज गूगलिंग करके काम तो चला रहे हैं। तो इसको अगर फॉर्मली कोई स्ट्रक्चर होता है जैसे गूगल के साथ, या बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो सेंसिटिव नेचर के, वो तो गूगल के पास नहीं होंगे, बट जनरल इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है ये कभी भी हमारे अधिकारी तो ऐसे में एक बार the veracity of the information is always checked also by the number of people are looking at it, because there will be many people will comment that this is not a correct article or something, and then it builds on it. That's how, I mean, you can't have just one person. That's how Wikipedia in fact functions. There are so many people who write one particular page on Wikipedia that there is at various levels that it is corrected. So that is why it is better than perhaps विकिपीडिया में भी कई बार कुछ ऐसी जानकारी रहती है कि जो आधिकारिक नहीं कही जा सकती है। ये क्रोम पिक्सल के बारे में वहाँ पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है, क्रोम बुक के बारे में। और हम जो बात कर रहे थे उसमें ये था कि प्रधानमंत्री, मुझे याद है किसी दिन वो कहीं भाषण दे रहे थे तो उनका ये कहना था कि गूगल है, फेसबुक है, हम भारत में भी अपना एक गूगल की तरह का एक सेटअप तैयार कर सकते हैं। और ख़ासकर जो गवर्नेंस की बात आप कह रहे हैं तो कई सारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको जब जानकारी की ज़रूरत होगी तो उनको क्रेडिबल जानकारी मिलेगी। और ये कब तक होगा कि हम गूगल की तरह का कोई सेटअप भारत में तैयार कर सकें? नहीं, ये तो कर ही सकते हैं हम, अगर जरूर प्रोग्राम है भी सरकारी प्रोग्राम है। अब तो देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात हो रही है, लोकलाइज्ड ऑपरेशन, बॉल, भारत ऑनलाइन। तो सर्च इंजन भी एक नेशनलाइज सर्च इंजन या नेशनल या रेस्ट्रिक्टेड एक सर्च इंजन, ये गवर्नमेंट के लिए हमेशा किए जा सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन आज के डेट में आप पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए अगर एक लोकलाइज्ड वो बनाते हैं तो इसको डायरेक्टली कंपटीशन गूगल के साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको लगता है आज के डेट में वो उसको कंपैरिजन में आगे बढ़ पाएगा? ये मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है गूगल को यूज करके, क्योंकि गूगल कह रहा है कि हम आपके डिजिटल इंडिया और ग्रोथ के साथ हम आपके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे अभी स्टेशंस में वाईफाई की बात हो रही, तो कोई सर्च फंक्शंस में भी कोई स्पेशलाइज्ड कोई एक